Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So let me ask you something real. Have you been told NCERTs are a must for UPSC? Don't skip them, don't joke with them? Chances are you have heard this more than once. But no one tells you why, or worse, they just leave you more confused. And if you are a sincere, genuine aspirant, the next question naturally hits you. Are NCERTs really that necessary? Are they still worth it? When we have so many coaching notes and substitutes readily available online? Do we really need to read all of them from class 6 to 12th, old ones, new ones, with notes or without notes? And most importantly, is the effort worth the outcome? If any of these questions have ever crossed your mind, trust me, you are not confused, you are thinking like a real aspirant. And I can say this after 4 mains and 2 interviews because I have been there, I have asked the same questions and even toppers have asked them too. So if you have thought of such questions, then drop a yes in the comments right now and you will be surprised to see how many real aspirants are out there wondering the exact same things as you. So let's clear the clutter now that yes, NCERTs are non-negotiable. And here's why. They are official government sources. They are conceptually strong and solid, and more importantly, UPSC doesn't just recommend them, UPSC directly lifts questions from them. Still not convinced? Take a look at these actual UPSC prelims questions pulled word for word from NCERTs. Year after year, 15 to 20 questions directly come from these books, and it doesn't end there. Even in mains, questions often trace their roots back to the basic NCERT chapters. You don't see it at first, but once you read them, you'll spot it everywhere. So here's the truth. You want to clear prelims? Start here. You want to write strong and structured mains answers? Start here. You want to understand complex topics without confusion? Again, start here. Ignore NCERTs and you'll always struggle with the basics. Master them and UPSC syllabus will start making sense to you. That's why, yes, they are definitely worth the hype, and yes, the results they deliver justify every bit of your time and energy you put into it. But here's the next big question. Do you really need to read all of them from class 6 to 12? Should you pick the old NCERTs or the new ones? And should you even make notes out of it? This is exactly what I'm going to share with you in this video. But yes, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही time हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का game नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अर्ली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. एंड ऑल्सो येस, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना मन में, इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट योर प्रिपरेशन दैट हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर प्री एंड मेंस टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड वे और वेयर यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम एट दिस मोमेंट, तो डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी डन दीज 4 videos that will eliminate every single doubt regarding the preparation you are having right now. These are about the first UPSC pre plus mains complete plan. The second video is on how to manage the time on daily basis, what should be actually your ideal or rather a practical daily schedule. And last, these 2 videos are for GS1 and GS2 where I have broke down this entire syllabus into micro topics, discussed their limited sources to be read, the note making strategy for pre and mains even with the previous year questions integration. ठीक है, इन चारों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाकर के इन्हें रेफर कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी नो दैट ऑन व्हाट टॉपिक शुड आई मेक द नेक्स्ट वीडियो विच कैन बेनिफिट यू इन योर प्रिपरेशन.
Alright, so with this now let's see that which NCERTs are mandatory, we shouldn't miss, जिन्हें पढ़कर हम प्री हो या मीन्स दोनों में ना अपने फ्री के मार्क्स पक्के कर सकते हैं. So let's start with the memory intensive subject first, that is history. अब देखो हिस्ट्री में जो एक सबसे पहले कंफ्यूजन रहता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ें, और अगर एनसीईआरटी पढ़े तो उसमें भी क्या हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें. तो सबसे पहले एक चीज बहुत क्लियरली समझ लो कि आपको हिस्ट्री के लिए ना ओल्ड एनसीईआरटीज ही फॉलो करनी है. ओल्ड एनसीईआरटी में आपकी आती है क्लास 11th की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक बाय आर.एस. शर्मा, देन अगेन क्लास 11th की मेडिवल हिस्ट्री की बुक बाय सतीश चंद्रा एंड 12th की मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा. ये 3 ओल्ड एनसीईआरटीज आपको हिस्ट्री की पढ़नी है. ये आपका प्री और मेंस दोनों में इक्वली काम आएंगी, बिकॉज इसमें आपको पूरा टाइमलाइन एंड क्रोनोलॉजी के ऊपर बेस्ड तरीके से पूरा समझाया हुआ है हिस्ट्री को, विच विल हेल्प यू टू आंसर नॉट ओनली द क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बट ऑल्सो द कंपैरिजन रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इन एंशिएंट एंड मेडिवल, जिस वजह से ये बुक्स आपके फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगी. बट दीज 3 बुक्स एट प्रेजेंट आर आउट ऑफ प्रिंट, तो आज के टाइम पे ना इनका रीप्रिंटेड वर्जन मिलता है मार्केट में इस तरीके से. ये सारी बुक्स में वीडियो के नीचे जो शॉपिंग टैब दिया होता है, वीडियो के नीचे आपको लिंक्स दिख जाएगा कि 30 प्रोडक्ट्स टैग या 40 प्रोडक्ट्स टैग, इस पे मैं सारी एनसीईआरटीज और ये रीप्रिंटेड वर्जन के मैं लिंक्स डाल दूंगी. आप वहां से जाके इजिली परचेज कर सकते हो इफ यू हैव नॉट बॉट देम येट. ठीक, तो ये तो हो गया हिस्ट्री. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री टू. तो देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में ना मैंने आपको GS1 की मेंस वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है ऑफ 10 मार्कर्स. तो इसका इनपुट टू आउटपुट बेनिफिट देखते हुए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है वो यहां समझो. सबसे पहले क्लास 9th एंड 10th की ये दोनों एनसीईआरटीज हैं, इसको आपको पढ़ना है बिकॉज हेयर यू विल नो दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. इसके बाद जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है क्लास 11th की, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पढ़नी है. नाउ व्हाट आई विल लाइक टू सजेस्ट हियर इज कि ये बुक जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, दिस इज द रीप्रिंटेड वर्जन ऑफ द ओल्ड क्लास 9th एंड 10th का एनसीईआरटी. तो बेसिकली इन 2 बुक्स में जो आप पढ़ोगे ना वो क्लब करके इसी एक बुक में पूरा रीप्रिंटेड वर्जन में बताया हुआ है. सो यू कैन रीड दिस सिंगल बुक इंस्टेड ऑफ दीज 2 एंड देन रीड द क्लास 11th का एनसीईआरटी. Now after this let's talk about the polity. So polity में आपको 2 एनसीईआरटी सिर्फ पढ़नी है. एक है क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव बोथ. एंड देन इसके बाद आपको क्लास 12th की ये वाली बुक पढ़नी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बिकॉज ये आपका एग्जैक्टली काम आएगा जो मेंस में GS1 का आपका टॉपिक दिया हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस उसके लिए. एंड प्लस इस बुक को ना अभी बहुत रिसेंटली रैशनलाइज किया गया है, मतलब कि इसमें जो भी पुराना डेटा था उसको अपडेट करके इसमें लास्ट 15 ईयर्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी ऐड किया गया है. तो प्लीज इस बुक को स्किप मत करना, इसको जरूर पढ़ लेना. आफ्टर पॉलिटी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी. अब इकोनॉमी में आपको क्या करना है ना, आपको 4 एनसीईआरटीज पढ़नी है 9, 10th, 11, 12th. अब इसमें भी क्या पढ़ना है वो यहां ध्यान से समझ लो. क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपके 2 चैप्टर्स जो है पॉवर्टी रिलेटेड एंड फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, सिर्फ वो पढ़ना है. क्लास 10th में आपको जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है ना कि डेवलपमेंट क्या होता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. देन क्लास 11th की आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी किताब पढ़नी है, बिकॉज इसमें आपको समझ में आएगा दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से रही है, क्या क्या चेंजेस हमने किए, क्या क्या रिफॉर्म्स किए, उसके बाद हमें कैसे आउटपुट मिले. देन क्लास 12th की आपकी ये एक बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, इसको पढ़ना है बिकॉज इसमें आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स जो प्री और मेंस दोनों में बहुत अच्छे से यूपीएससी पूछता है. आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, जीडीपी है, जेएनपी है, बट हाँ इसको पढ़ते टाइम ना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है. जितने भी फॉर्मूलाज इसमें दिए हुए हैं ना बहुत हैवी उनको बिल्कुल अवॉइड करना है. नाउ आफ्टर इकोनॉमी लेट्स डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में आपको बेसिक ये 4 एनसीईआरटीज है. 2 है क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट, और 2 है आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. आपको इन चारों को पढ़ना है विद योर मैप बुक. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो एनसीईआरटीज है ना इनको भी रैशनलाइज किया गया है, अपडेट किया गया है. जो भी ओल्ड डेटा था आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन के रिगार्डेड, तो इन बुक्स को जब भी आप परचेज करना इनका बिल्कुल लेटेस्ट प्रिंट एडिशन ही लेना. एंड आई एम टेलिंग यू ज्योग्राफी में अगर आपने ये 4 बुक्स मास्टर कर लेना तो इससे आपका सिर्फ प्री का नहीं बल्कि ज्योग्राफी का मोर देन 95% जो मेंस का सिलेबस है ना वो भी आपका सिर्फ इन 4 बुक्स से पूरा कवर हो जाएगा. नाउ आफ्टर ज्योग्राफी लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर में हर जगह हमको ये बताया जाता है कि मैं क्लास 11th की एक एनसीईआरटी आती है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसको पढ़ना है बिकॉज इसमें बहुत अच्छे से आर्किटेक्चर को बहुत प्रॉपर्ली कवर किया हुआ है फ्रॉम द स्टोन एज टिल द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर.
बट व्हाट आई बिलीव इज कि जो क्लास 12 की न्यू 2 एनसीईआरटीज है ना आपकी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 फॉर एंशिएंट हिस्ट्री एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 फॉर मेडिवल हिस्ट्री, इन दोनों को आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ते टाइम पढ़ना है, बिकॉज इन दोनों ही बुक्स में ना रिस्पेक्टिव थीम्स कवर करते हुए पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एंशिएंट एंड मेडिवल का प्रोवाइड किया हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट इन आर्ट एंड कल्चर. तो इन 3 बुक्स को आपको फॉर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है. नाउ कमिंग टू साइंस, तो साइंस के लिए आपको 3 एनसीईआरटीज पढ़नी है. एक तो हो गई आपकी क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज, जहां पे आप ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को फोकस करोगे, लाइक व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, व्हाट इज द रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन. इसमें आपको बिल्कुल फॉर्मूलाज को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ. और साथ में जो क्लास 12th की बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी है, उसमें जो यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसको आपको पढ़ना है. इसी सेम बुक में आपको एनवायरमेंट के लिए ना यूनिट 10 दैट इज इकोलॉजी यूनिट को कवर करना है, जिसमें आपके बेसिकली 3 चैप्टर्स आते हैं, 14, 15 एंड 16. इसमें आपको इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज अच्छे से कवर हो जाएंगे. एंड द लास्ट एनसीईआरटीज दैट यू हैव टू रीड इज फॉर सोसाइटी. सोसाइटी में आपकी बेसिकली 4 एनसीईआरटीज आती है 11th एंड 12th में, लेकिन आपको जीएस पर्सपेक्टिव से 12th की जो दोनों एनसीईआरटीज है ना, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको पढ़ना है. बिकॉज मेंस में आपका जीएस 1 में जो सोसाइटी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उसके फंडामेंटल्स आपकी इन्हीं 2 बुक से बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. Okay, so now before we move further, let me quickly clarify few things that you must know while reading NCERTs for UPSC. The first is, you don't have to read all the NCERTs from 6th to 12th. सारी NCERTs पढ़ने की जरूरत नहीं है, because there is a lot of repetition. For example, geography in class 6 to 8th is again covered in class 9th and 10th, and then again repeated with more depth in class 11th and 12th. So ideally, start with class 11th and 12th NCERTs first. 11th and 12th NCERT से ही शुरुआत करो, but if any point of time you feel that they are too advanced or seem to be heavy to read and understand in one go, especially after the gap of 6-7 years, because most of us have read the social science NCERTs maximum by class 10th, then without any judgment, feel free to go back and read the class 9th and 10th NCERT or even the class 6 to 8 NCERT books to build a strong foundation. अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा है ना लिटरली 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज को समझने में, वंस यू रीड इट इन द फर्स्ट रीडिंग, तो प्लीज ज्यादा दिमाग मत लगाओ और क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज पढ़ो. उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो और पीछे जाओ, क्लास 6 से 8 तक की एनसीईआरटीज पढ़ो, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पीड. Another thing is that if you're seriously preparing for UPSC, you must understand this, that आपको कुछ extraordinarily different नहीं करना है UPSC को क्रैक करने के लिए. Just basics पे कमांड डेवलप करो, conceptual clarity पर फोकस करो, and your journey will become 10 times smoother. I'm telling you this with my own experience. Third and probably the most important one is that don't rush to make notes in the first reading. फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाने की तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो, बिकॉज वेन यू रीड समथिंग न्यू एवरीथिंग फील्स इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एस्पिरेंट्स एंड अप राइटिंग अनदर वर्जन ऑफ द सेम बुक एज नोट्स. हम नोट्स के नाम पर ना पूरी दोबारा बुक ही लिख डालते हैं, जिसमें हमारा टाइम एंड एनर्जी दोनों बहुत वेस्ट हो जाता है. Instead, what you can do is, in your first reading, just underline the important lines or keywords, and then during the second or the third reading, start making the crisp notes in the book itself on the side margins. Just like this. This is my Geography Class 11 NCERT book. देखो, I have added all the required information and extra information on the side margins and highlighted the important stuff. The point is that if you revise the same source or the book multiple times, say 3-4 times, बार बार देखोगे, आंखों के सामने से निकालोगे ना, it will get fixed into your subconscious mind. And another point which rarely anyone talks about is the importance of the NCERT questions. So जब भी NCERTs पढ़ो तो हर चैप्टर के एंड में कुछ एक्सरसाइजेस दी होती हैं. For example, this is the chapter 10th in Geography Class 11th NCERT about atmospheric circulation and weather systems. अब इसके एंड में यू कैन सी दैट देयर आर सम एमसीक्यूज गिवन एंड देयर आर इवन सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिन्हें हमें 150 वर्ड्स में आंसर करना है, जो एग्जैक्टली मेंस की रिक्वायरमेंट भी है. देयर आर 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 यू हैव टू आंसर विद इन 150 वर्ड्स ओनली. And also the quality of these NCERT questions is of mains standard as well. Just read this question. Why does tropical cyclone originates overseas? And in which part of the tropical cyclone do torrential rains and high velocity winds blow and why?
अब व्हाट यूपीएससी हैज डन इज कि इसी क्वेश्चन से उठा करके यूपीएससी ने जो GS1 में ज्योग्राफी के अंडर साइक्लोन एज अ सब टॉपिक है उससे रिलेटेड यहां से इसी क्वेश्चन को अपना बेस बनाते हुए काफी बार क्वेश्चंस रिपीट करके पूछे. So the point I'm trying to make here is that use the maximum amount of NCERTs into your preparation by doing this exercise as you read them. ओके सो नाउ अगर आपको मेरी बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स दैट यस वी अंडरस्टूड सो दैट आई एम अश्योर्ड दैट यू वोंट रिपीट द सेम मिस्टेक आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो दैट मोर देन 80 to 90% एस्पिरेंट्स आर मेकिंग कंफ्यूजिंगली. तो ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बिल्कुल बेयर मिनिमम बेसिक एनसीईआरटीज को फॉलो करना है. लेकिन इन एनसीईआरटीज को फॉलो करते वक्त अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी होती है समझने में, देन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि आप उसके बाद पहले 9th and 10th का पढ़ो. 9th and 10th की एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इतना इन डेप्थ में हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, देन ओनली गो एंड रीड फ्रॉम 6th to 8th का एनसीईआरटीज. ठीक है, सो वी आर डन फॉर दिस वीडियो. लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.